Good morning, dear children. So today we will know about adaptation of animals or animal life. Okay. So before that, all of you open your book and bring your pencil copy so that the important notes you can write in your copy or you can underline in the book. Okay. So let's start. So let's start the chapter. As you all can see, I have already written some points. First, we will know habitat. As you know, there are millions of different types of animals that live on the earth. Some animals, such as amoeba, are very tiny and can only be seen under a microscope. Some, as the blue whale, are huge, many times as the size of an elephant. There are millions of animals, plants in our environment. Okay, and they are adapted to the type of environment they live in. So what is a habitat? The surrounding or the environment in which an animal or a plant lives is called its habitat. जो सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में एक एनिमल और प्लांट या फिर प्लांट रहते हैं, रहते हैं, उसको बोला जाता है हैबिtat. ओके, and there are millions of different type of animals. For an example, amoeba is so tiny that you cannot see in your naked eyes. You have to use microscope to see it. At the opposite side, blue whale is so large. Blue whale is so huge that you don't need a microscope to see it. Okay, so there are different type of animals, and their surrounding in which they live in is called their habitat. Okay, so now we will know adaptation to habitat means what are the places in which the plants and animals lives. First, land, water. Both land and water lives in trees and fly. Okay, so first we will know terrestrial animals. What do you mean by terrestrial animals? Animals that live on land are called terrestrial animals. Those animals who lives on land. Okay, those animals that lives on land are called terrestrial animals. Then aquatic animals that live in and around our water called aquatic animals, जो पानी में रहते हैं. देन एम्फीबियंस एनिमल्स दोज हु लीव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड एंड वाटर बोथ, लैंड में भी रहते हैं वाटर में भी रहते हैं, उनको बोला जाते हैं एम्फीबियंस. एंड देन एनिमल्स दैट लीव्स ऑन ट्रीज. ओके, एनिमल्स दैट लीव्स ऑन ट्रीज, उनको क्या बोला जाता है? ऑर्बोरियल एनिमल्स. दे आर नोन एज ऑर्बोरियल एनिमल्स. एंड देन एनिमल्स दोज हु फ्लाई, उनको बोला जाता है एरियल. ट्रीज में जो रहते हैं ऑर्बोरियल, और जो फ्लाई करते हैं उनको एरियल. So now we will know about how do terrestrial animals breathe and move. Terrestrial animals breathe through their two lungs, okay, which are connected by a breathing tube to the nostrils. Air is breathed in through the nostrils and fills the lungs. तो क्या होता है? जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारे नोस्ट्रिल मतलब नोज में जो होल होता है उसके थ्रू जाके कहाँ पहुँचता है? लॉन्ग्स में. ठीक है, फिर जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा लॉन्ग्स फूल जाता है, बड़ा हो जाता है. जब हम एक्सेल करते हैं तो इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. ठीक है, तो टेरिस्ट्रियल एनिमल कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू देयर टू लॉन्ग्स. और हम जब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो हमारे नोस्ट्रिल में जो होल है उसके थ्रू वो कहाँ जाके पहुँचता है? लॉन्ग्स में. ठीक है, then the lungs become big when air enters. Okay, then there क्या होता है वहाँ पे? The lungs exchange the oxygen in the inhaled air with the carbon dioxide produced in the body. ठीक है, the air is then breathed out through the nostril. जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है? इनहेल करने के टाइम वी क्या करते हैं? ऑक्सीजन हमारा अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो बाहर निकल जाता है एक्सेल होके. ठीक है, तो now we understood terrestrial animals breathe through two lungs. Okay, now we will understand how do terrestrial animals move. terrestrial animals कैसे मूव करते हैं? Now we will know how do terrestrial animals move. Okay,
Terrestrial animals have legs which help them to move, to find food or to protect themselves. Terrestrial animals mostly use their legs. Okay, for an example, lions, elephants. Okay, they use their limbs, four limbs to walk. द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स. उनका जो फ्रंट में लिम्ब होता है उनको बोला जाता है फोर लिम्स, एंड द वंस बिहाइंड आर द हिल लिम्स. और जो बैक में होता है उनको बोलते हैं हिल लिम्स. फ्रंट के पीछे जो होता है उनको बोलते हैं हिल लिम्स. ओके, then cheetah, horses, zebras, they are good runners. They use their strong legs to run fast. Okay, cheetahs, tiger, as you all have maybe you all have seen in Discovery Channel or Animal Planet, they use their legs to move fast. Okay, like that rabbits move by jumping instead of walking. Rabbits never walk. Okay, they hop means to move by jumping. Jump करके वो move करते हैं. Like that, humans, you all know how does humans move. They use their legs to move or to walk. Okay, and then snakes and worms do not have legs. They are reptile animals. Okay, they move by curving and straightening its body. वो अपने body को straight और curve करके move करते हैं. Like that, crocodile, lizards, they use their short legs. All insects have 6 legs, and ants and beetles use their legs for walking. A grasshopper uses its powerful hind legs to hop. Okay, so this is the most important thing. All insects have 6 legs. Okay, they use their short legs to move forward. So now we understood about breathe and move. Okay, now we will go to animals that live in water or aquatic animals. Okay, so as I have already told about aquatic animals that live in water are called aquatic animals. Now we will know how do they breathe and how do they move. For an example, fish breathe through its gills. Okay, fish breathe through its gill, and fish move through its fins. And the most important thing is fish have 3 types of fins. fish का क्या होता है? 3 टाइप का फिन्स होता है. वन इज यूज टू बैलेंस, वन इज यूज टू चेंज डायरेक्शन, एंड वन इज यूज टू स्टॉप. ओके, some fish also use their fins like oars to push the water to move forward. Okay, so fish, for an example, fish breathe through its gills and move through its 3 types of fins. Okay, now we will know dolphin, and some more examples are dolphin have lungs. Okay, dolphin का lungs होता है breathe करने के लिए. And fish move कैसे करता है? fins के थ्रू. और एक frog कैसे move करता है? frog अपने waved hind gill से, ठीक है, waved hind gill से leg से move करता है. ठीक है, अपने वेव्ड हिंड लेग से वो क्या करता है? मूव करता है. द वाटर बोटमैन इज एन इंसेक्ट दैट यूजेस इट्स लेग्स एज ओर्स टू स्विम. ओके, ओर मीन्स ए लॉन्ग स्टिक यूज टू रो ए बोट. ठीक है, प्रॉन एंड टैडपोल अपने लेग यूज करते हैं. टर्टल्स का क्या होता है? फ्लिपर्स होता है जिसके थ्रू वो स्विम कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा ही एनिमल, एक्वाटिक एनिमल जो हैं ब्रीथ और मूव करते हैं. और कुछ हैं जो कि डॉल्फिन और वेल्स क्या होता है? लॉन्ग्स होता है, उनका गिल्स नहीं होता है, और वो बाहर आते हैं. ठीक है, वाटर से बाहर आते हैं ब्रीथ करने के लिए. सो नाउ यू विल नो अबाउट एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स किसको बोलते हैं? दोज हु फ्लाई. ओके, एरियल एनिमल्स किसको बोलते हैं? दोज एनिमल्स who can fly, उनको बोलते हैं एरियल एनिमल्स. और एनिमल्स such as birds and bears spend a lot of time in the air, they are known as aerial animals. उनको एरियल एनिमल्स बोला जाता है. and they have wings instead of legs. उनका क्या होता है? wings होता है instead of legs, क्योंकि wings के थ्रू वो फ्लाई करते हैं. now one most important point, which is migration. The regular movement of animals every year in search of better living condition is called migration.
क्या होता है, जैसे कि साइबेरिया हो गया, वहाँ पे जो कि रसिया में है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ठंड होता है, इतना ठंड होता है दैट बर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो क्या करते हैं रेगुलरली इंडिया या फिर कुछ और कंट्री है जहाँ पे वो आते हैं इन सॉर्ट्स ऑफ फूड एंड शेल्टर, ताकि उन्हें फूड और शेल्टर मिल सके, ठीक है। तो बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जो रेगुलर मूवमेंट होता है इन ए पर्टिकुलर मंथ और एवरी ईयर एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको बोला जाता है माइग्रेशन। So now we will, I am giving you some examples like the Arctic tern, eels, monarch butterflies and Siberian cranes. ये क्या करते हैं, या तो लार्ज ग्रुप ऑफ में आते हैं या फिर एलोन भी ट्रैवल करते हैं। तो आर्कटिक टर्न जो है वो 70,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है माइग्रेट करने के लिए आर्कटिक रीजियन से अंटार्कटिका तक, ठीक है। क्या होता है आर्कटिक टर्न जो है 70,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है आर्कटिक रीजियन से अंटार्कटिका में, देन बैक अगेन। माइग्रेट मतलब क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम में आएंगे फिर वापस भी वो रिटर्न करेंगे, तो आर्कटिक टर्न। फिर ईल्स जो होता है, ईल्स क्या करता है, वो फ्रेश वाटर में रहता है ईल्स, लेकिन जब उसको रिप्रोड्यूस करना आता है वो क्या करता है 6,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है सी में टू रिप्रोड्यूस ओनली। रिप्रोड्यूस करने के लिए 6,000 किलोमीटर वो फ्रेश वाटर से सी तक ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, यंग ईल्स जब रिप्रोड्यूस हो जाते हैं उनके साथ दोबारा फ्रेश वाटर में रिटर्न करता है। फिर जो मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो क्या करते हैं, कनाडा से मेक्सिको को ट्रैवल करते हैं इन विंटर, कनाडा से मेक्सिको इन विंटर, फिर समर में बैक करते हैं। उसी तरह साइबेरियन क्रेन जो मैं बताई रसिया में है, वो क्या करते हैं, अभी तो 10 साल हो गया इंडिया में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब विंटर का टाइम होता है बहुत ठंड के वजह से क्या होता है, वो साइबेरिया से इंडिया तक ट्रैवल करते हैं। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स हु डज माइग्रेशन, ओके। Now we will study about adaptation for food or different eating habits. Actually, there are mainly three groups of animals which are herbivorous, carnivorous, omnivorous. Herbivorous means animals that eat plants. Okay, animals that eat plants, only plants जो खाते हैं उनको बोला जाता है herbivorous, और उनका they have sharp front teeth to cut or bite the plants. उनका sharp front teeth होता है so that they can cut the plant, and large flat back teeth होता है ताकि वो अच्छे तरह से उसको च्यू करके खा सके, ठीक है। Then the second point is कैनिभरस, एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। जो एनिमल दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं उनको बोला जाता है कैनिभरस, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, तो क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका हो गया लायंस, टाइगर्स, उनका क्या होता है पॉइंटेड फ्रंट टीथ होता है सो दैट दे कैन टीयर द फूड इजीली, एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होता है सो दे कैन च्यू द फ्लेश एंड बोन्स, ठीक है। और एक है ईगल्स एंड ओल्स। ईगल्स एंड ओल्स क्या करते हैं, उनका शार्प क्लोज होता है सो दैट दे कैन कैच द एनिमल्स, ठीक है। और शार्प हुक्ड बीक्स होता है सो देयर दे कैन टीयर द फ्लेश। एंड देन फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स का स्टिकी टोंग होता है, ठीक है। देन वी विल गो टू omnivorous. Omnivorous means animals that eat both plants and animal. जो एनिमल both plant and animal को खाते हैं उनको बोला जाता है omnivorous, जैसे कि डॉग, ह्यूमन्स, फॉल्स, ये सब बियर्स, ओके। देन वी विल गो टू पैरासाइट्स. So now we will know about parasite. Parasites animal that feed on living animals or plants. जो कि living animal और plant में feed अपना खाना मतलब वो क्या करते हैं स्टॉक करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हो गया मॉस्किटोज। ये क्या करते हैं हमें ही बाइट करके एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को बाइट करके उनसे ब्लड सॉक कर लेते हैं। सॉकिंग उनका क्या होता है, दे डू नॉट हैव टीथ, उनका टीथ नहीं होता है, उनका सॉकिंग ट्यूब होता है जिसके थ्रू वो ब्लड सॉक करते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स.
So, my dear children, now we will know different body coverings or how the animals protect themselves from their enemies. तो some animals have spines और cells. कुछ एनिमल का क्या होता है, स्पाइंस और सेल होता है, जैसे कि पोर्क्यूपाइंस, हेजॉग्स, इनका क्या होता है, स्पाइंस होता है, ठीक है. सो दैट जबकि उनको मतलब वो सेंस कर सकते हैं, जबकि फील कर सकते हैं. स्नेल्स का क्या होता है, सेल्स होता है. जब वो फील करते हैं कि उनके सराउंडिंग में कुछ एनिमी आ रहे हैं या फिर कुछ डेंजर कुछ डेंजर हो सकता है, तो जब वो फील करते हैं तो क्या करते हैं, हेजॉग क्या करता है, अपने आप को बॉल जैसा रोल्स अप कर लेता है, ठीक है. सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. तो और अभी अगर बॉल जैसा वो पूरा अपने आप को पूरा रोल कर लेता है तो उसको पहचानना भी प्रॉब्लम होगा. और स्नेल्स का क्या होता है, सेल होता है. स्नेल्स का सेल होता है उनके बॉडी में कवर करके, तो उनको जब फील होता है कि अभी कुछ डेंजर होने वाला है तो अपने आप को उस सेल में कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट वी विल नो स्केल्स. स्केल्स क्या होता है, फिश एंड रेप्टाइल्स हैव स्केल्स टू प्रोटेक्ट देम. फिश का क्या होता है, थीन स्केल्स होता है, और रेप्टाइल्स का हार्ड लेदरी स्केल होता है, जिसमें से जिसके थ्रू अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और बर्ड्स का क्या होता है, फीदर्स होता है, वो क्या करता है, कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. उनको क्या करता है, गर्मी देता है और फ्लाई करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है. और ममल्स का क्या होता है, ममल्स का होता है हेयर, जो कि उनको गर्मी देता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. सो एक्चुअली आई हैव रिटन सम ऑफ दिस बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स. कुछ एनिमल्स का बॉडी पार्ट मैं यहाँ लिखी हूँ, ठीक है. और क्या है, और मैं लिखी हूँ हॉर्न्स. हॉर्न्स में कैसे, जैसे कि रिहानसोर्स, बुफालोज, वो क्या करते हैं, अपने हॉर्न्स के सहारे एनिमीज के साथ फाइट करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है. और मैं लिखी हूँ फॉर. पोलर बियर का इतना फॉर होता है, उसको वो अपने आप को जब बहुत ठंड हो जाता है तो उस फॉर के सहारे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. और क्या होता है, पोलर बियर फिर अपने जो मतलब सराउंडिंग के साथ, वो वाइट कलर का होता है, तो अपने सराउंडिंग के साथ फॉर के वजह से उसको पहचानने में भी दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है. तो और मैं क्या पॉइंट लिखी हूँ, कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस, बट फिर भी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ. कैमोफ्लेज मतलब सम एनिमल्स मर्ज विद देयर सराउंडिंग. आप जैसे कि स्टिक इंसेक्ट हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ ऐसा मैचअप कर लेते हैं, मर्ज कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है, ठीक है. ये हो गया कैमोफ्लेज. सो ऐसा मैं कुछ ही पॉइंट लिखी हूँ, कुछ ही बॉडी पार्ट लिखी हूँ. और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट है, जैसे कि ग्लोबफिश हो गया, ये सब भी बहुत सारे, जेब्रा का स्ट्राइप हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं. बट आई होप you all can understand by reading the chapter. So this is one most important point I thought that I should remind you, as you have already known about it in your earlier class, but I thought I should remind you about this. So what do you mean by hibernation? Some animals during summer eat as much as they can and store fat. Then during winter they sleep in caves or burrows in the ground and use up the extra fat. This behavior is called hibernation. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, समर में जितना वो खा सकते हैं दे ईट, वो खा लेते हैं, ठीक है. फिर क्या होता है, फैट को स्टोर कर लेते हैं. फिर विंटर में वो अपने केव्स में सोते ही रहते हैं, या फिर ब्यूरोज में, या तो केव्स में सोते ही रहते हैं. और जो फैट जब समर के टाइम में जो स्टोर करके रखे थे उसको यूज करते हैं, ठीक है. वो अपने फ्यूचर को सोच के प्रेजेंट में जितना खा सकते हैं खा लेते हैं, फिर फ्यूचर में वही फैट को यूज करते हैं. तो ये प्रोसेस को बोला जाता है हाइबरनेशन. So now you will know about how does some animals breathe. तो सबसे पहले एम्फीबियंस किसको बोलते हैं, एनिमल्स दो जो लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, उनको बोला जाता है एम्फीबियंस. जो जब वाटर में रहते हैं तो क्या करते हैं, जब वाटर में रहते हैं अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, और जब लैंड में होते हैं तो अपने लॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है. जब वाटर में होते हैं तो अपने स्किन के थ्रू, और जब लैंड में होते हैं तो अपने लॉन्ग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थवर्म अपने मॉइस्ट स्किन से, इंसेक्ट अपने बॉडी होल्स, उसको स्पिराकल्स भी बोला जाता है, और फिश अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है.
तो ये सब कुछ पॉइंट है, होप यू ऑल अंडरस्टूड. So my dear children, hope you all have understood the chapter. Still, if anyone has doubt, then you can ask me in the comment section. Okay. So thank you all for watching the video.